Friends, today we will start our new chapter number 2, hardware and software. In this chapter, we will discuss only two things, which is hardware and software. So, what is hardware? Let's start. You know about the parts of a computer, such as the central processing unit, CPU, keyboard, mouse, monitor, printer, and speaker. These are physical parts of the computer that you can see and touch. They are known as the hardware of the computer. जो हमारे कंप्यूटर में मेन पार्ट्स होते हैं वो कीबोर्ड होते हैं, माउस होते हैं, जिन्हें आप टच कर सकते हैं. दीज आर कॉल्ड हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर, जिन्हें हम देख सकते हैं और हम जिन्हें टच कर सकते हैं. सम हार्डवेयर सच एज मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस आर ईजी टू सी एंड टच. कुछ हार्डवेयर होते हैं वो हमें बहुत ईजीली हम उन्हें टच कर सकते हैं और देख सकते हैं. Other hardware such as hard disk are the main component of the CPU. The CPU chip are inside the CPU box. You can see these when you open the CPU box. और कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के जो हम सिर्फ कभी कभी देखते हैं, जैसे कि CPU के अंदर जो हार्डवेयर होती है जिसे हम CPU की चिप भी बोलते हैं, वो आपको तभी दिखती है जब आप CPU को ओपन करते हैं. Then only you will see this. The hardware of a computer consists of input devices, output devices and storage devices. Hardware of a computer consists of input device. There are three types of devices of the hardware of a computer. First one is input device, second one is output device, and third one is storage devices. So let's talk about input devices. What are input devices? I think you all know this. What are input devices? Input devices are hardware devices with which you input words, numbers, sounds और picture into the computer. Input का means ही है input, किसी चीज़ का input देना. तो आप जब कंप्यूटर के डिवाइस में, कंप्यूटर के हार्डवेयर में जब आप कोई भी चीज़ का इनपुट देते हैं, चाहे वो नंबर हुआ, कोई अल्फ़ाबेट हुआ, तो वो आपका क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है. यू ऑलरेडी नो दैट कीबोर्ड, माउस एंड माइक्रोफोन आर इनपुट डिवाइसेस. सम अदर input devices are scanner, web camera, trackball and joystick. These are the example of input devices. First one is keyboard. You all know what is keyboard and what is the work of keyboard. A keyboard has many keys. कोई नई बात नहीं है, कीबोर्ड के अंदर बहुत सारी कीज़ होती हैं. यू प्रेस द कीज़ टू टाइप लेटर, नंबर एंड स्पेशल सिम्बल्स. आप क्यों कीबोर्ड यूज़ करते हैं? कीबोर्ड आप टाइपिंग के लिए यूज़ करते हैं. उसमें बहुत सारे नंबर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कीज़ होती हैं. द फर्स्ट 6 letters in the first row of a keyboard are quittery. See this CPU, the first row, this is called फर्स्ट रो ऑफ कीबोर्ड, जिसमें लिखा है क्विटरी और इधर से लिखा है UIOP. तो फर्स्ट रो कहलाती है हमारी क्विटरी कीबोर्ड. द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़ ऑन द कीबोर्ड आर एज फॉलोज. ये आपकी कुछ कीज़ हैं. आई विल शो यू फॉर 1 second. दिस वन इज़ कैप्स लॉक, फर्स्ट वन. सेकेंड इज़ टैब की. थर्ड इज़ नंबर की. फोर्थ इज़ फंक्शन की. फिफ्थ इज़ बैक स्पेस. सिक्स्थ इज़ डिलीट एंड दीज आर नंबर कीज़. सो नेक्स्ट शिफ्ट की, अल्फ़ाबेट की, this is space bar, symbol key, enter key and direction keys. These all are the keys which you have seen on the computer and इसी के साथ पूरा कीबोर्ड आपका वर्क करता है. फर्स्ट वन इज़ अल्फ़ाबेट कीज़. अल्फ़ाबेट कीज़, those keys which have alphabets. The keys on a keyboard that have letters of the alphabet on them are called alphabet keys. वो कीज़ जो कीबोर्ड पे जिन पे अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो हमारी अल्फ़ाबेट कीज़ कहलाती हैं. There are 26 alphabet keys. You know how many alphabets are there in our English?
there are 26 alphabets. So the letters of the English alphabet are A to Z are marked on them. ये शफल करके दिए होते हैं, एक साथ आपको ABCD करके नहीं दिए होते हैं, ये शफल करके दिए हुए होते हैं. Are marked on them but the keys are not in alphabetical order. आई हैव टोल्ड यू ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको नहीं दिए हुए होते हैं. यू कैन यूज़ दी अल्फ़ाबेट कीज़ टू टाइप लेटर टू फॉर्म वर्ड एंड सेंटेंसेज एंड यू विल यूज़ देम टू टाइप लेटर्स. आप उनको लेटर किसी लेटर लिखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, कोई सेंटेंस लिखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, एट्सेट्रा. सो दिस इज़ दी अल्फ़ाबेट की. नाउ वी विल टॉक अबाउट नंबर की. नंबर की से ही पता चल रहा है विच टेल्स दी नंबर्स, which works on the numbers. So see, the keys in the row above the alphabet keys on a keyboard have number 0 to 9 marked on them. These are called number key. आपको ये दिख रहा है कीबोर्ड के ऊपर 0 to 9 से कुछ नंबर लिखे होते हैं, 0 से लेके 9 तक, और उनके ऊपर भी कुछ सिम्बल्स बने होते हैं. these are called symbol keys. तो वो we will talk about it later. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट व्हाट आर नंबर कीज़. तो नंबर कीज़ 0 to 9 होती हैं. मोस्ट कीबोर्ड्स ऑल्सो हैव नंबर कीज़ ऑन द राइट साइड. और बहुत सारे कंप्यूटर्स में ऊपर भी दिया होता है और साइड में भी नंबर कीज़ दी होती हैं. these number keys make up the numeric keypad and it will make a numeric keypad. और वो एक numeric keypad बना लेती हैं. To use the numeric keypad, press the key marked number lock. You can then type in the number. जो आपका राइट साइड में जो कीज़ होती हैं उनको यूज़ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रेस दी न्यूमेरिक लॉक. आपको नंबर लॉक आपको प्रेस करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल एबल टू यूज़ दी नंबर कीज़. ओके, सो द मेन वर्क ऑफ अल्फ़ाबेट कीज़ इज़ टू type letters and the main work of number keys to type numbers, etc. Next, what are special keys? Symbol keys. These keys have punctuation marks and special symbols marked on them. All the number keys have symbol marked on the upper part of the keys. आपको पता है कुछ स्पेशल कीज़ होती हैं हमारी जिनमें क्या होता है, आपके किसी में क्वेश्चन मार्क लगा है, किसी में पंक्चुएशन मार्क लगा है, तो वो आप यूज़ करते हैं कुछ स्पेशल, जब आपको कुछ बहुत ज़्यादा उसके अंदर स्पेशलिटी डालनी होती है तभी आप उसको यूज़ करते हैं. टू टाइप द सिंबल मार्क्ड बिलो ऑन अ की प्रेस द की. टू टाइप द सिंबल मार्क्ड above on a key, press and hold the shift key and then press the key. If you want to use the special key, then first of all you have to press the shift key. अगर आपको स्पेशल की यूज़ करनी है देन यू हैव टू प्रेस दी शिफ्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले शिफ्ट की प्रेस करनी होगी, उसके साथ आपको वो नंबर की प्रेस करनी होगी, तभी वो आपका स्पेशल की यूज़ हो पाएगा, वरना नहीं होगा. नेक्स्ट इज़ स्पेस बार. The space bar is the longest key on the keyboard. It is just below the alphabet keys. It is used to insert spaces between letters and number. What are the what is space bar key? Space bar key का main work होता है आपका space देना letter और number के बीच में. The main work of space bar key is to give space between letter and number. Okay, ये alphabet key के नीचे होती है. Caps lock key. कैप्स लॉक की का वर्क क्या होगा? द कैप्स लॉक की इज़ ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द कीबोर्ड. कैप्स लॉक की कीबोर्ड के लेफ़्ट साइड में होती है. इट इज़ यूज टू टाइप कैपिटल लेटर. और ये यूज़ होती है किसी भी, अगर आपका कोई वर्ड स्मॉल है उसको कैपिटल बनाने के लिए. टू टाइप अ कैपिटल लेटर प्रेस दी कैप्स लॉक की एंड देन प्रेस दी अल्फ़ाबेट की. अगर आपको कोई कैपिटल लेटर प्रेस करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेस कैप्स लॉक की. सबसे पहले आपको कैप्स लॉक की ऑन करनी पड़ेगी, देन ओनली यू विल able to see the word in capital letter. Okay, so main work is caps lock key to capitalize the letters. Now next is backspace key. The backspace key is used to erase letter, number or symbol to the left of the cursor. The main work of backspace key to delete the
वर्ड, सेंटेंस और नंबर एट्सेट्रा। डिलीट की, बैक स्पेस की और डिलीट की इज़ द सेम, बट बैक स्पेस की इज हैव ऑल्सो some different work, but the delete key is used to erase the work. Both backspace key and delete key have the same work, but it is given on the computer, it is given on the keyboard. Delete key is used to erase letters, number और symbol to the right of the cursor. ये delete की भी आपको बैक स्पेस की लेफ़्ट साइड में दिखेगी, लेफ्ट ऑफ द कर्सर, और आपको डिलीट की राइट ऑफ द कर्सर दिखेगी, बट डिफरेंस इतना सा ही है। नाउ व्हाट इज़ एंटर की? द एंटर की इज़ टू द राइट ऑफ द अल्फ़ाबेट की। आपकी एंटर की आपके राइट में होती है अल्फ़ाबेट के। व्हेन यू गिव एन इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर, जब आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, यू प्रेस द एंटर की टू मार्क द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन। वाइल टाइपिंग इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। ओके, जब आपको कोई भी वर्क करना होता है, जब आप कोई भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, सपोज़ आपने लिखा व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर। आप जब आप कॉपी पे लिखते हैं तो व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर और आप क्वेश्चन मार्क लगा के एंड कर देते हैं। बट इन कंप्यूटर आपने कोई भी चीज़ सर्च करने के लिए डाली, व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर एंड यू विल एंटर इट। जब आप एंटर मारते हैं तभी आपका कंप्यूटर क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को लेता है। ओके, तो एंटर की का वर्क होता है टू एंड दी इंस्ट्रक्शन, और जब आप टाइप करते हैं तब कर्सर को मूव करने के लिए दूसरी लाइन पे भी आपकी जो ये कौन सी एंटर की यूज़ होती है। नेक्स्ट, शिफ्ट की। The shift key is used to type a special character and symbol given on the upper part of the sum of the keys. For example, the symbol given above the number key 1. To type, hold the shift key down and press the number key 1. आपको क्या करना है, सबसे अगर आपको सी दिस, ये आपके कुछ स्पेशल कीज़ हैं, इन पे अगर आपको इनको यूज़ करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रेस दी शिफ्ट की। जब आप शिफ्ट की प्रेस करेंगे तभी आप उन अपर लेटर्स को, जो अपर नंबर्स हैं, उनको आप यूज़ कर पाएंगे। उनके ऊपर जो आपके सिंबल्स दिए हैं उन्हें आप शिफ्ट के साथ जब दबाएंगे तभी आप उन सिंबल्स को यूज़ कर पाएंगे। You can also type capital letters with the help of shift key. To type a capital letter, hold the shift key down and then press the alphabet key. और this is also same like आपका कौन सी की है, ये कैप्स लॉक की तरह ही वर्क करता है। ये भी कैपिटलाइज करने के लिए यूज़ होता है। टैब की, प्रेसिंग द टैब की मूव्स द कर्सर 5 स्पेसेस टू द राइट। ये आपका जो टैब की होता है, टैब की 5 स्पेस करके आपको राइट में पहुंचा देता है। फंक्शन की,